A very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma. Good afternoon. Wait for another 5 minutes, then I will start the session. Let others will also join. Please make sure all of you should have laptops. Please switch on your laptops. In the meanwhile time, please switch on your laptops. I have to start with the R basics today. First, I will tell about the R, and then we will install the R, and then we will start the R. Wait for 5 minutes. Up to that time, you can switch on your laptops. I'm sharing my screen. If you have any doubt, you can also share your screen. I think I should start. Let's start. Wait for another 2 minutes, then I will start. There is one request for all of you. Kindly write your name in your chat boxes. Kindly write names in the chat boxes. If you are from other college, please type the name after your name. Please tell your college name after your name. Good, Anmol. Very good. If you are from another college, kindly write the college name also. Please confirm all of you have laptops. Please confirm all of you have opened your laptops. Then you can only do. क्योंकि आप मैं जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करूंगी आप साथ साथ कीजिएगा. जैसे जैसे मैं बताऊंगी आप अपनी स्क्रीन शेयर करते जाइएगा और साथ साथ बताइएगा. Okay. Now I am starting my session. I am sharing my screen. First I am telling about the basics of R. हाँ जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? Yes, ma'am. Okay. I'm telling about the R. See, R is a programming language. It was an implementation over S language. R was first designed by Ross Ishaka and Robert Gentleman at the University of Auckland in 1993. It was stable released on October 31st, 2014, the 4 months ago, by the Journal Public License. Okay. Basically, what is R? R is a programming language and software environment that is used for statistical computing and graphics. It is widely used among statisticians and data miners for developing statistical software and data analysis. It can be used for many platforms like Windows, Unix, Mac operating system. We can use it. Why R? Why we want to use R? The most extensive modeling resource in scientific research, the fine publishing quality graphs,
we can easy to develop our own model, and the most important, it is free available, and it is an open source language. R package is a collection of R functions with comprehensive documents. In this package, it includes R functions, data example, help files, namespace, and description. The default installation is kept as minimum. The function of R could be extended by loading R packages. ये देखिए, this is the screenshot of your R screen. What are these features of R? It is an open source language. The source code of R program and the extensions could be examined line by line. Integrated with other programming languages, R is an interpreting language. It can be rather slow, but could integrate with high efficient languages like C, C++, or Fortran. It is operating system is independent, like we can use on Unix like Linux, Windows, Mac operating system. Anji, is there any doubt? Ma'am, one of my friend is unable to join the meeting. एक मिनट वेट कीजिए. अंजी युग मोंगिया. Yes, ma'am. चलो बेटा, मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर मैं दूसरे टैब पे आ गई. अंजी, anyone left? I have admit to all. Now I can continue. Okay. Anji, it is operating system independent, like we can use R on Unix platform, Linux, Windows, Mac operating system. In this, we have to write commands. Okay, these are the comparison with other languages like R programming, Python, and Java. R programming was stably released in 2014. It has more functions and packages. It is an interpreter-based languages. It is basically used for statistical design and graphics programming language. It is slightly difficult from Python. R is mostly used for data analysis. This language is used for data analysis. Merits, what are the merits of R? R is the most comprehensive statistical analysis package available. अगर आप कोई भी रिसर्च का वर्क करते हैं, कोई भी डेटा एनालिसिस काम करते हैं, then R is used. It incorporates all of the standard statistical tests, models, and analysis, as well as providing a comprehensive language for managing and manipulating data. R is a programming language and environment developed for statistical analysis by practices, statistician, and researcher. And the main capability is that graphical capabilities of R are outstanding. It provides a fully programmable graphics language, and it is a free and open source software. It allows anyone to use and importantly to modify it. Okay, R has 4,800 packages available from multiple repositories specializing in topics like econometrics, data mining, spatial analysis, and bioinformatics. R is a cross-platform, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं, and R runs on many operating system and different hardwares. It is popularly used on Linux, Macintosh, Microsoft Windows. And what are the demerits? What are the disadvantages of R? It is an interpreting language and it's not very fast. All the objects are in memory. R is slightly difficult to learn. One has to memorize the commands and function. देखिए, इसमें एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है जिसके थ्रू ही आप कमांड्स को रन कर सकते हैं. वो आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, तभी आप कमांड्स को रन कर सकते हैं. And understands the logics of the programming. The fluency R requires great time and energy. Okay, this is all about the R. मैंने आपको बताया कि जो बेसिक्स हैं R के, ये क्या है. ये बेटा अभी भी आ रहे हैं लोग. हाँ जी. अब मैं आपको जो मैं बता रही हूँ, अगर आपने अपने लैपटॉप्स ऑन कर लिए हैं, तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि आप आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं. ओके, तो आर को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ. ये देखिए, सबसे पहले आप जाइए, ये देखिए, आप इस लिंक पे जाइए, मैं आपको चैट बॉक्स में दे रही हूँ. वहां पे जाके
ये आप लिंक कॉपी पेस्ट में चैट बॉक्स पे दे रही हूँ, वहां पे कीजिए। देखिए ये लिंक आ गया आपके पास https:/project.org। इस लिंक पे जाइए। इस लिंक पे जाने के बाद आप इंस्टॉल कीजिए आर स्टूडियो। आपको इंस्टॉल क्या करना है? और स्टूडियो इंस्टॉल करना है। देखिए कैसे करना है, ये देखिए मैं इस लिंक पे गई cran.r/project.org। अब ये देखिए अगर आपके पास ये स्क्रीन आ गई हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डाउनलोड आर फॉर विंडोज। क्या आप लोग देख रहे हैं? यहाँ तक पहुंचे आप? हाँ जी, Yes, ma'am. यहाँ तक आपको, अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन गो फॉर द डाउनलोड आर फॉर विंडोज। क्लिक डाउनलोड आर फॉर विंडोज। देन यहाँ पे बेस पे जाके लिखिए इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। देन डाउनलोड आर 4.1.1 फॉर विंडोज, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एंड देन आपकी एक EXE फाइल आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन आप उसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ तक आप कर चुके हैं? यहाँ तक ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, पर इससे मेरी बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं दोबारा से इसको बंद कर रही हूँ। हाँ जी, मैंने ये लिंक दिया हुआ है आपको चैट बॉक्स पे। ये चैट बॉक्स पे आपको लिंक नजर आ रहा है। आप इस चैट बॉक्स पे लिंक पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, आपने चैट बॉक्स पे लिंक पे क्लिक किया। देखिए सबसे पहले जो चैट बॉक्स में लिंक है इसको क्लिक कीजिए। जैसे आपने चैट बॉक्स पे लिंक पे क्लिक किया, देन आपको ये विंडो नजर आएगी। इस विंडो पे आप जाके, अगर आपका लाइनक्स नहीं है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन क्लिक डाउनलोड आर फॉर विंडोज। फर्स्ट स्टेप इज क्लिक डाउनलोड आर फॉर विंडोज। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? डाउनलोड, ओके, डाउनलोड आर फॉर विंडोज। देन सेकेंड स्टेप इज, अब आप ये देखिए सब डायरेक्टरीज में सबसे पहले आपकी बेस लिखा हुआ है। बेस में यहाँ पे जाइए इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लिक ऑन द इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, कैन आई क्लिक? बेटा प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए, कैन आई क्लिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आई हैव क्लिक्ड दैट। अब मेरे पास ये स्क्रीन आई। इस स्क्रीन पे देखिए डाउनलोड आर 4.1.1 फॉर विंडोज। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड आर 4.1.1 फॉर विंडोज, इस पे क्लिक कीजिए। ओके, ये देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, आपकी एक फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज योर EXE फाइल। अब उस EXE फाइल को आप ओपन कीजिए। अब आप देखिए ये फाइल आपकी ओपन हो रही होगी। अब आप इसको कर दें, पूछेंगे कि डज इट चेंजेस टू योर डिवाइस, इसको यस कर दीजिए। लैंग्वेज इंग्लिश ओके कर दीजिए। आपसे ये सब चीजें पूछ रहे हैं, इसको नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। मेरे पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फिर भी मैं इसको अभी मैं यस कर रही हूँ। इसको नेक्स्ट कर दीजिए। Your screen got stuck. हाँ जी Your screen got stuck. बेटा, स्क्रीन स्ट्रक, मेरे को स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। Ma'am, you're only presenting Chrome and not your screen app itself. एक मिनट वेट कीजिए, लगता है मैंने ऑन नहीं किया। एक मिनट रुकिए, मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करके मैं दोबारा करती हूँ। वेट कीजिए, मैं इंटायर स्क्रीन कर देती हूँ। हाँ जी, अब नजर आया आपको? हाँ जी, यहाँ तक आप आ चुके थे। Yes, ma'am. डाउनलोड आर 4.1.1 फॉर विंडोज किया आपने, Yes, ma'am. एंड देन अब आप इसके बाद
इसको ओपन कीजिए, इसको यस कर दीजिए। देखिए मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी थी इसमें मेरी, इसलिए मेरे पास लिंक्स थोड़े डिफरेंट आएंगे। सिलेक्ट सेटअप लैंग्वेज, इंग्लिश कर दीजिए, देन डू नेक्स्ट। बेटा मैं इसको बार बार प्रोसेस को बार बार नहीं कर सकती, इसलिए एक बार इसको ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना, मोस्टली में नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है आपको, सब कुछ अपने आप ही दिखाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है लेकिन मैं फिर भी यस कर रही हूँ। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, create a desktop shortcut, yes, now it is preparing to install। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, मैम मैंने क्लास ना लेट ज्वाइन की थी, तो मैम ये कैसे डाउनलोड करना है, वो लिंक भेज दो एक बार। बेटा मैंने मैसेज बॉक्स में आपको एक लिंक भेजा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए। मैम क्लास लेट ज्वाइन की थी तो है नहीं इनबॉक्स में। मैसेज बॉक्स में नहीं है, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, मिल गया आपको लिंक। हाँ जी बेटा, लिंक मिल गया आपको। यस मैम। ओके, मैम लिंक में क्या करना है मैम? आप लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक यस करने मैम। के बाद आपका डाउनलोड आर फॉर विंडोज आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। एंड देन यस मैम। बेस पे जाके, बेस सबसे ऊपर बेस आएगा, बेस पे क्लिक इंस्टॉलेशन जो भी लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। वो अपने आप ही पूछेगा, आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइएगा। हाँ जी, इंस्टॉल हुआ आर किसी का? यस मैम। हाँ जी, जब तक आर इंस्टॉल नहीं होगा फिर मैं आगे नहीं बता पाऊंगी। बेटा आप लोगों का आर इंस्टॉल हो चुका है? यस मैम। यस मैम। आप अपनी विंडो शेयर कर सकते हैं? नो मैम। एक मिनट मैं स्टॉप कर रही हूँ, आप लोग प्लीज कोई एक दो बच्चे इसको शेयर करके दिखाएं, आपकी विंडोज कैसे नजर आ रही है, मुझे ये देखना है। हाँ जी, सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स का हुआ है आर इंस्टॉल। अनमोल एंड रिदम। यस मैम। हाँ जी, बस ये इन्हीं दो स्टूडेंट्स का हुआ है। ये किसने अपनी विंडो प्रेजेंट की है बेटा? अनमोल, हृदय have, हाँ जी, they have raised their hands, any problem?
संकेत, शौर्य, एनी प्रॉब्लम? इंस्टॉल मैम। इंस्टॉल्ड? अच्छा, ये बताइए इंस्टॉल हो गया सबका, पहले ये बताइए। Yes, ma'am. ओके, अब देखिए आपको ऐसी अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये मेरा भी हो चुका है, इसको मैं फिनिश कर रही हूँ। हाँ जी मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ? नो, अब मैं आपको बता रही हूँ आप स्टार्ट कैसे करेंगे। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन ओपन कर लूँ, देन मैं शेयर करती हूँ। प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, अब आपको आर्ट स्टूडियो भी इंस्टॉल करना है। आर्ट स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, देखिए। ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. अभी artstudio.com की वेबसाइट पे जाइए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, सिस्टम में। बेटा 1 मिनट में ना ये अपना सिस्टम स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर रही हूँ। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। ये बार बार हैंग हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार मैं स्विच ऑफ करके इसको स्विच ऑन कर रही हूँ। ओके, आप लोग इतना आर्ट स्टूडियो, आप आर्ट स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं। आर्ट स्टूडियो की वेबसाइट पे जाके उसको आर्ट स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिए। 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए, मैं इसको स्विच ऑफ कर रही हूँ। मैम ये आर स्टूडियो मैम फ्री वर्जन ही डाउनलोड करना है ना?
हाँ जी बेटा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ जी। अब आपको आर स्टूडियो के लिए क्या करना है, ये देखिए, एक और नया टैब मैं ओपन कर रही हूँ। किसी ने किया डाउनलोड आर स्टूडियो? यस मैम। हो गया आपका डाउनलोड? Yes, ma'am. ये देखिए स्टेप्स मैं एक बार बता रही हूँ आपको फटाफट। डाउनलोड आर स्टूडियो, डाउनलोड द आर स्टूडियो आईडीई, इस पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड, ये फ्री स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन है, इसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज पे जाके इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपकी एक EXE फाइल आएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? मैम ये पहले वाले उससे लिंक से डिफरेंट है, ये जो पहले वाला लिंक था? हाँ जी, हाँ जी, आपको दोनों चीजें करनी है, पहले इंस्टॉल आर करना है और फिर डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप करना है। मैम ये आर स्टूडियो वाला लिंक दे सकते हो आप? आर स्टूडियो में कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाइए, लिख दीजिए डाउनलोड आर स्टूडियो। डाउनलोड ठीक है। आर स्टूडियो जैसे ही करेंगे, आपका जो फर्स्ट आएगा, आपका आएगा आर स्टूडियो आईडीई, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर जैसे ही डाउनलोड करेंगे, सबसे नीचे पे जाएंगे आप, फ्री में आएगा, फ्री आर स्टूडियो डेस्कटॉप, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपको ये फाइल नजर आएगी, आप इसको क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज, एंड ये आपकी EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको ओपन कीजिए। मैम डन। ये देखिए अब अपना आपका हो रहा है, ये देखिए, नेक्स्ट करते जाइए, आपका डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉल कर दीजिए इसको। किस किस का मैम हो गया आर फर्स्ट जो स्टूडियो? हाँ जी जो आर डाउनलोड करना है मैम, उसके एक बार लिंक दोबारा पेस्ट कर दीजिए। बेटा, आपका विंडोज में मैंने आपके मैसेज बॉक्स में है, कोई बेटा दोबारा से भेज दीजिए इसको। जिसके पास भी लिंक है मैसेज बॉक्स में दोबारा टाइप कर दीजिए। पहले आर आप इंस्टॉल कीजिए एंड देन आर स्टूडियो डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लीजिए। आर स्टूडियो किस किस का हो गया? मैम इंस्टॉल हो रहा है। ओके, हाँ जी, ये आर स्टूडियो सेटअप हो गया। अब इसको फिनिश कर दीजिए, यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। ये किसने, हाँ जी, अब मैं आर स्टूडियो आपका हो चुका, तो आप लोग देखेंगे कैसी फाइल आपको नजर आएगी। ये देखिए, आपका आर स्टूडियो आपको ऐसा नजर आएगा।
ये आपने देखा, ये स्क्रीन सबकी आई है, पहले ये बताइए। Yes, ma'am. हाँ जी, अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको, आर स्टूडियो के बारे में। देखिए, आपको ऐसी स्क्रीन नजर आएगी, ऐसी स्क्रीन नजर आ रही है आपको सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, तो आप इसमें फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट कर दीजिए। फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए और एक न्यू प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। देखिए, आपका देखिए, सबसे पहली चीज आपकी दो चीजें होती है, पहले इसको समझिए आप लोग काम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपनी कोई स्क्रिप्ट फाइल बनानी है तो आप जो भी कमांड्स यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपकी स्क्रिप्ट फाइल में यहाँ पे आप सेव भी कर सकते हैं। सोर्स ऑन सेव में जाके आप इसको फाइल को सेव भी कर सकते हैं और बाद में इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं पे वर्ड में कॉपी भी कर सकते हैं। ये आपकी जो जितनी भी आप कमांड्स देंगे ये आपकी सेव हो जाएगी। दूसरा काम करने का तरीका है कि आप कीबोर्ड है, कंसोल मीन्स कीबोर्ड पे आप जो भी कमांड्स दे रहे हैं टाइप कीजिए और वो टाइप करके आपको आउटपुट यहीं की यहीं आपको आउटपुट शो करेगा। एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट। आप जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी डिक्लेरेशन करेंगे वो यहाँ पे सारा आपको शो होगा कि आपने कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद आप ये वाली चीजें देख रहे हैं, ये देखिए, फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस, हेल्प एंड व्यूअर। फाइल्स हैं, आपने जितनी भी न्यू फाइल, जैसे अभी मैंने न्यू फाइल बनाई है न्यू डॉट आर प्रोजेक्ट के नाम से, एक नया फाइल बनाई है। एंड देन प्लॉट्स में आप क्या करेंगे, जितने भी अगर आप पाई चार्ट्स बनाते हैं, किसी भी टाइप्स के प्लॉट्स बनाते हैं, वो सारे आपको प्लॉट्स में नजर आएंगे। नेक्स्ट है पैकेजेस। पैकेजेस क्या है कि इसके अंदर आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं जो आपकी वर्किंग के लिए जरूरी है, आप उसके अंदर जाके उसका पैकेज को टाइप करके वो पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको किसी चीज के लिए हेल्प चाहिए तो हेल्प में जा सकते हैं, कोई चीज व्यू करना चाहते हैं तो आप व्यूअर में जाके देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी दिखा रही हूँ जिसके थ्रू आपको ये पता चलेगा, थोड़ी सी स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूँ कि आप बेसिकली आर में काम कैसे करते हैं। ये है बेसिकली आर का छोटा सा इन्वायरमेंट, ये आपकी बेसिक स्क्रीन की जिसमें आप काम करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप आर प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या कभी आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है? आपको बेसिक्स मालूम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? हाँ जी, Yes, ma'am. No, ma'am. नो मैम। ये नो मैम। No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं मालूम। चलो थोड़ा सा मैं फिर भी जितना है, जितना हो सके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि अगर जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया हो उसके लिए आर पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि उनको बेसिक्स मालूम होंगे। जिनको बेसिक्स नहीं मालूम होंगे मैं भी फिर भी उनको थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रही हूँ। अब आप देखिए, ये थोड़े स्क्रीनशॉट्स हैं, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितने भी आर में वेरिएबल्स क्या होते हैं। कैन एनीवन टेल व्हाट आर द वेरिएबल्स? व्हाट आर वेरिएबल्स? ये बता सकता है वेरिएबल्स क्या Ma'am, होते X and Y and Z. हैं? एक्स एंड वाई। एनीवन एल्स? व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स? जिसने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की Ma'am, हुई हो। हाँ जी, variables. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बेटा। मैम मैथ्स के टर्म में आता है वेरिएबल्स के कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती या उसको कुछ भी हम एज्यूम करते हैं एक नंबर। वेरिएबल वो स्पेस होती है जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, गुड। एनीवन एल्स? व्हाट आर वेरिएबल्स? हाँ जी, वेरिएबल्स आर नथिंग बट द रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर एनी वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू आप मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो वो किस सेंस में करते हैं? आप वेरिएबल के नेम में आप स्टोर करते हैं। तो दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट ए वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। मान लीजिए अब ये वेरिएबल्स जो स्टोर करते हैं वो न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के भी हो सकते हैं, आपके बुलियन भी हो सकते हैं, डेट टाइप के भी हो सकते हैं।
वो डिफरेंट टाइप के आपके वेरिएबल्स, उनकी डेटा टाइप्स हो सकती है। तो देखिए आप मेमोरी में मान लीजिए इसमें देखिए 3 वेरिएबल्स इन्होंने स्टोर किए हैं, लाइक x इक्वल टू 25। इट मीन्स आपने एक वेरिएबल लिया x, आपने मेमोरी में उसको जो वैल्यू असाइन की है दैट इज योर 25 वैल्यू आपने x वेरिएबल को असाइन की है। सेकंड आपका देखिए हम कोई भी वेरिएबल r में डिक्लेयर करते हैं तो आपकी 3 मेथड्स हैं जिनसे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे सेकंड वेरिएबल जो ये 25 था दैट इज योर न्यूमेरिक वैल्यू। सेकंड वेरिएबल जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज योर कैरेक्टर टाइप। तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, y असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन हेलो। तो इट मीन्स आप कैरेक्टर टाइप वैल्यू एक आप वेरिएबल y में स्टोर कर रहे हो। थर्ड क्या आपका, आप ट्रू और फॉल्स दैट इज योर बुलियन टाइप्स। तो आप b वेरिएबल में आप असाइन कर रहे हो वैल्यू ट्रू। तो इट मीन्स वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स एक मेमोरी लोकेशंस हैं जिसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप हो, नेम्स वगैरह हो आपके, या फिर आपकी लॉजिकल वैल्यूज या बुलियन वैल्यूज हो लाइक ट्रू और फॉल्स, यस और नो, इस टाइप की वैल्यूज हो, या फिर आपकी इंटीजर टाइप की वैल्यूज हो, या फिर आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यूज हो, वो आप लोग स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। तो देखिए आप अगर आर में काम करेंगे, मैं साथ साथ बता रही हूँ आप वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखो, अब आपका ये है आर स्क्रिप्ट पे मैंने लिखती हूँ a इक्वल टू 25। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 25। तो जैसे ही मैं a इक्वल टू 25 लिखूंगी, आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके रन करना होगा। जब मैं रन करूंगी तो उसका आपको आउटपुट नजर आएगा। ये देखिए रन किया तो उसने दिखा दिया a इक्वल टू 25। और वैल्यूज में देखिए इन्वायरमेंट में आपने एक वैल्यू ली, एक a वेरिएबल लिया जिसके अंदर वैल्यू आपकी 25 स्टोर हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब अपने सिस्टम में भी कीजिए। ये मैंने न्यूमेरिक स्टोर किया। अब मैं एक बार रिपीट दोबारा करती हूँ। ये देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया b, उसके अंदर वैल्यू मैंने असाइन की 30। ओके, एंटर प्रेस कर दिया, कुछ नहीं हुआ। ये रन कमांड तब होती है, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको रन प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने रन प्रेस किया, इसकी आउटपुट आपको शो कर दी कि b वेरिएबल में मैंने वैल्यू 30 स्टोर की है। और आपकी वैल्यूज जहां पर भी इन्वायरमेंट में स्टोर होगी, जितने भी नए नए वेरिएबल्स आप स्टोर करेंगे उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे शो करता जाएगा। दैट इज योर इन्वायरमेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले कोई वैल्यू आप असाइन करेंगे, देन आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप उसको रन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? Ma'am, I can't see this window in my RL Studio. Studio, ma'am. एक मिनट बेटा, दोबारा बोलिए, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। Ma'am, I can't see this window on my R Studio, ma'am, जिसमें आपका run source वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, मैम। Why? Ma'am, I don't know the reason. देखिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो नहीं रहा है ये वाला। देखिए एक मिनट, फाइल पे जाइए, यहाँ पे फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट कर दीजिए। फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट कर दीजिए। एंड देन अगर आपकी यहाँ नहीं हो रही, आप कंसोल पे भी सीधा टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया c, इसमें वैल्यू मैंने प्रेस की 78, एंटर प्रेस किया। इसमें सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कंसोल पे डायरेक्ट कर रही हूँ। इसको रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं कंसोल पे टाइप करती हूँ तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी वो वैल्यू उसमें वहाँ पे अपने आप असाइन हो जाएगी। अगर आप कंसोल पे काम करना चाहते हैं, कंसोल पे भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट पे काम करना चाहते हैं सेव करने के लिए, तो उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइप करके बार बार सिलेक्ट करने के बाद रन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखने के बाद आप उसको एंटर प्रेस कर दीजिए, वो आपकी वैल्यूज असाइन होती जाएंगी। क्लियर हुआ आपको? मैम न्यू प्रोजेक्ट के बाद बताना। आपका न्यू प्रोजेक्ट आ गया, बस अब आपको कुछ नहीं करना। आपका कंसोल आ रहा होगा, कंसोल में आप अपनी जो भी कमांड्स लिखना चाहते हैं लिख दीजिए और उसको एंटर प्रेस करके आप इन्वायरमेंट में देख लीजिए। मैंने 3 वेरिएबल्स अभी आपके सामने डिक्लेयर की हैं, उनकी वैल्यू आपको नजर आ रही है, ए बी एंड सी। ए में वैल्यू 25 असाइन की है, बी में वैल्यू 30 असाइन की है एंड सी वेरिएबल में 78 वैल्यू असाइन की है।
अभी तक मैंने ये काम किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ जी, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? मैम न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एंड वर्जन न्यू डायरेक्टरी, आप न्यू डायरेक्टरी पे जाइए। मैम देयर आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट आर पैकेज शाइनी वेब एप्लीकेशन। हाँ जी, न्यू प्रोजेक्ट पे जाइए। मैम डायरेक्टरी नेम हमें कुछ लिखना पड़ेगा। नेम लिख दीजिए कोई भी। यस मैम। किसी भी नाम से उसको सेव कर दीजिए। हो गया यहाँ तक आपका? अपने वेरिएबल डिक्लेयर करें, 3 वेरिएबल्स। हमें कैसे करना है वेरिएबल? हाँ जी, दोबारा देखिए। आप देखिए 2 तरीके से काम कर सकते हैं। या तो अपनी स्क्रिप्ट पे टाइप कर सकते हैं, या फिर कंसोल पे जाके आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो आपकी फ्यूचर के लिए स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी और उसको सोर्स ऑन सेव करके आप हमेशा के लिए इसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल आउटपुट देखनी है, आप कमांड्स को बस रन कीजिए, एंटर कीजिए और आपको कमांड्स की आउटपुट साथ के साथ नजर आ जाएगी। अगर आप कंसोल पे करते हैं, बस सिंपल तरीके से इसको डिक्लेयर कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 30, c इक्वल टू 78। ये 3 वेरिएबल्स मैंने न्यूमेरिक टाइप डिक्लेयर किए और तीनों की वैल्यूज मुझे नजर आ रही है। अब मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ डी को मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कैरेक्टर टाइप। जो भी हमारा कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, आप हमेशा उसको डबल कोट्स में डिक्लेयर करते हैं। मैंने मान लीजिए इसके अंदर वैल्यू लिखी हेलो। मैंने 3 न्यूमेरिक टाइप्स के लिए डिक्लेयर करे और एक मैंने कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर करा। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा बोलिए, जहां तक क्लियर है? यस मैम। अब इसके बाद मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। इसमें आपकी, अभी तक तो मैंने किए थे न्यूमेरिक। देखिए न्यूमेरिक टाइप का जो है वेरिएबल, उसमें आपकी डेसिमल पॉइंट्स भी आ जाते हैं और इंटीग्रल वैल्यू दोनों आ जाती है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल मैं ऐसा ले रही हूँ जिसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू आए, तो आर में आप उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 32, कैप्स में लिखूंगी एल, क्योंकि आपकी जो आर लैंग्वेज है वो आपकी केस सेंसिटिव और लोअर लेटर्स में आप इस पे काम करते हैं। तो हर वर्ड्स का, हर करेक्टर का इसमें कोई मीनिंग है। तो देखिए अगर मैं इसको टाइप करूंगी तो इसका मतलब मेरा जो ई वेरिएबल है 32L, एल किसको डिनोट करता है कि ये इंटीजर टाइप है। देखिए इंटीजर और फ्लोट में क्या फर्क होता है। मान लीजिए आपकी वैल्यू है 28.5, तो उसमें से 28 है दैट इज योर इंटीजर टाइप। तो आपका जो न्यूमेरिक टाइप है उसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है, आपका इंटीजर भी आ जाता है और आपका फ्लोट भी आ जाता है, दैट इज योर न्यूमेरिक डेटा टाइप। लेकिन अगर आप एल डिनोट करते हैं तो उसमें आपके न्यूमेरिक टाइप का सिर्फ इंटीग्रल पार्ट आता है। इंटीग्रल पार्ट मींस आपका सबसेट है आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप का। अगर मैं एल टाइप डिनोट कर रही हूँ, इट मींस इट इज टेकिंग ओनली इंटीजर वैल्यू। तो ई में आपकी जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं एल से डिनोट करूंगी तो इट मींस इट इज इंटीजर टाइप। मेरा जो वेरिएबल ई है दैट इज योर इंटीजर टाइप एंड 32 वैल्यू इज स्टोर्ड इन ई वेरिएबल। Ma'am, if we type this once, can we not edit it again? हाँ जी, इसमें एक आर में आपकी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, इसमें अपने आप डिक्लेयर हो जाते हैं। इसमें डेटा टाइप्स आपको डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, इसमें अपने आप वो शो कर लेता है। अगर मैं डबल कोट्स में लिख रही हूँ इट मीन्स इट इज कैरेक्टर टाइप। अगर मैं इसको ऐसी नंबर्स लिख रही हूँ, न्यूमेरिक्स में लिख रही हूँ, इट मीन्स इट इज नंबर टाइप। अगर मैं एल में लिख रही हूँ दैट मीन्स इट इज इंटीजर टाइप। ये आर ही इसको अपने आप ही प्रेज्यूम कर लेता है, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको ये बताना पड़ता है कि जो ये वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप क्या है। कैरेक्टर टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है, इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, या जितने भी डेटा टाइप्स हैं आपको उसमें शो करना पड़ता है। हाँ जी बोलिए। फ्लोट टाइप के लिए क्या लिखना होगा? हाँ जी, फ्लोट टाइप देना है तो देखिए मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे f इक्वल टू
54.08। ये देखिए, दिस इज योर फ्लोट टाइप। ओके, तो जो भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हो, कि आप जिस तरीके से डिक्लेयर करोगे उसी से पता चल जाएगा आर को कि किस टाइप का वेरिएबल है। आपको डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई चीज डबल कोट्स में दिया, इट मींस इट इज कैरेक्टर टाइप। अगर मैंने एल के साथ दिया, इट मींस इट इज इंटीजर टाइप। अगर मैंने पॉइंट्स में दिया, इट मींस इट इज फ्लोट टाइप। अगर मैंने न्यूमेरिक नंबर्स दे रही हूँ, मैं किसी भी चीज के साथ नहीं दे रही, इट मींस इट इज न्यूमेरिक टाइप। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मैम फ्लोट टाइप क्या होता है? फ्लोट टाइप आपका ये होता है जिसमें आपके डेसिमल टाइप्स आते हैं, आपके फ्रैक्शनल में आते हैं, जैसे 3/2, 7/6, 32/3, जिसमें आप डिवाइड करके डेसिमल में आंसर्स आते हैं। इट मींस पूरा का पूरा आपका डिवाइड नहीं होता, जिसमें आपका आंसर्स आपको डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आपका बचता है। दैट मींस आपका पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आपका आंसर आता है। दैट इज कॉल्ड फ्लोट टाइप। मैम न्यूमेरिक और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, न्यूमेरिक और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? न्यूमेरिक जो आपका है उसके अंदर दोनों चीजें आ जाती है, फ्लोट टाइप भी आ जाता है आपका और आपका इंटीजर टाइप भी आ जाता है। जैसे मैंने लिखा 54.08, तो 54 जो है, अगर मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं सिर्फ 54.08 में से सिर्फ मैं 54 वैल्यू ले रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट ले रही हूँ। नंबर लाइन में मैं सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट ले रही हूँ और फ्लोटिंग नंबर डेसिमल पॉइंट्स इसके रिजेक्ट कर रही हूँ। तो इट मीन्स इंटीग्रल पार्ट दे रही हूँ, तो इसका मैं मतलब मैं ये बता रही हूँ कि मैं ये वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रही हूँ, इट इज इंटीजर टाइप। इट मीन्स जो न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसके अंदर दोनों चीजें होती है, फ्लोट प्लस इंटीजर। और जो फ्लोट टाइप है उसमें सिर्फ अगर मैं डेसिमल में प्रेजेंट कर रही हूँ तो इसमें इसका मतलब इंटीजर पार्ट नहीं है, और इंटीजर में प्रेजेंट कर रही हूँ तो इसका मतलब उसके अंदर फ्लोट टाइप नहीं है। इसमें आप इतना पसंद मत होइए। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में डिक्लेयर करती हूँ वेरिएबल को, इट मीन्स इट इज कॉल्ड फ्लोट टाइप या डेसिमल टाइप। अगर मैं एल से डिक्लेयर कर रही हूँ तो इट्स मीन्स इसमें आपका पॉइंट वाला, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा, पूरा ही आपका नंबर आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं? आगे चलूं? यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। अब आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर में आपके डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, एंड देयर आर लूप्स आल्सो। तो आपके डेटा ऑपरेटर्स में ये आपके 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो आपका बेसिकली मैं वन बाय वन अब मैं इनके बारे में बताऊंगी। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? विल यू शेयर दिस पीडीएफ विद अस? हाँ जी मैम, ये पीडीएफ शेयर करोगे? बेटा आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? मैम, आई एम आस्किंग विल यू शेयर दिस पीडीएफ विद अस? या ऑफ कोर्स बेटा। हाँ जी, आपको ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ऑपरेटर्स अवेलेबल इन आर। तो वन बाय वन करेंगे। पहले अब हम करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लाइक एक मिनट। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, these टाइप्स के ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो देखिए अब हम आर में इसकी प्रैक्टिस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। ये सारे हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। मान लीजिए अब मुझे 2 वेरिएबल्स को ऐड करना है। तो मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस b। देखिए आंसर आया 55। ये मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर एडिशन वाला यूज किया। अगर अब मैं मांग करूंगी b माइनस a, आंसर देखिए, आंसर आया 5। b की वैल्यू b माइनस a के था, b में वैल्यू 30 है, a में 25 है। आंसर मुझे शो कर दिया 5। दैट इज एडिशन ऑपरेटर यूज किया, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया।
अब मान लीजिए मैंने किया a मल्टीप्लाई बाय b। अब देखिए जो है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, a एंड b को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं करती हूँ a डिवाइडेड बाय b। देखिए फ्लोट में इसका आंसर आ रहा है। अगर मैंने a को b से डिवाइड करा तो आपका फ्लोट में आंसर आ गया। तो मैंने आपको 4 ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताए। फर्स्ट इज एडिशन, सेकंड इज सब्ट्रैक्शन, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये चारों चीजें आप भी ट्राई करके देखिए साथ के साथ। यस मैम। हो गया सबका यहाँ तक? हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई यस डाउट? मैम। हाँ जी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपको, ये चारों ऑपरेटर सब मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ऑपरेटर है लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर ऑफ राइट। अब मान लीजिए अगर मैं जो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ये देखिए अगर मैंने किया 2 एक्सपोनेंट 3, इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। इसका आंसर देखिए 8 आया। मैं एक और ट्राई करती हूँ, 5 रेज टू द पावर 8। इसका आंसर देखिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट ऑपरेटर अगर हम देखें, परसेंटेज परसेंटेज, दैट इज रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा। ये देखिए मैंने लिखा 5 परसेंटेज परसेंटेज 2। इट मीन्स मैं 5 को डिवाइड कर रही हूँ। डिवाइड किससे कर रही हूँ? 2 से। 2 से डिवाइड करूंगी तो इसका आंसर क्वोशेंट नहीं आएगा। इस मीन्स इसका आंसर क्वोशेंट मीन्स 2 नहीं आएगा। जो आपका रिमाइंडर होगा वो उसका आंसर होगा। 2 2 जा 4। आपका रिमाइंडर क्या बचा? 1। मैम डिवाइड का साइन है ये 2 टाइम्स हाँ जी, दिस इज परसेंटेज परसेंटेज साइन। दिस मीन्स इस ये जो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इसमें आप क्या करते हैं कि आपका आंसर रिमाइंडर आता है। जैसे 10 परसेंटेज 4, आपका क्या रिमाइंडर आया? आपका रिमाइंडर 2 आया। 4 2 जा 8। इट मीन्स आपका जो आंसर, क्योंकि हम जो डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं, आपका आंसर क्वोशेंट होता है। लेकिन जो अब आप ये ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसमें आपका जो आंसर है वो आपका रिमाइंडर है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हाँ जी। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखिए। नेक्स्ट ऑपरेटर इज परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज। ये थोड़ा सा मैम एक बार रिपीट कर दीजिए बेटा। परसेंटेज वाला मैम। ये लीजिए परसेंटेज वाला। इसमें आपका जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा। जैसे मैं कोई और वैल्यू लेती हूँ, 8 परसेंटेज परसेंटेज 5। मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ 8 को, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर पूछ रही हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रही। रिमाइंडर क्या आएगा अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी 8 को? हाँ जी, रिमाइंडर क्या आएगा अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी 8 को? -3। माइनस क्यों बेटा? सिर्फ 3। ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें आपका आंसर क्या आता है? रिमाइंडर आपका आंसर होता है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज। ये आपका वैसे इतना ऑपरेटर यूज नहीं किया जाता। परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज, इट डिविजन्स दैट रिजल्ट्स इनटू अ होल नंबर एडजस्टेड टू द लेफ्ट इन द नंबर लाइन। इसमें आपका क्या होता है? 7 परसेंटेज बाय परसेंटेज 2।
इसमें जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने 7 को 2 से डिवाइड किया। मैम आपकी स्क्रीन लेट रिस्पॉन्ड कर रही है। स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही है बेटा? मैम लेट रिस्पॉन्ड कर रही है स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे नेट का कनेक्शन की तो प्रॉब्लम नहीं है। अब नजर आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी, अगर मैं 7 को डिवाइड करूंगी 2 से, तो जो आपका जितना भी आंसर हो वो आपका पूरा होल नंबर ही दिखाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 9 को डिवाइड किया परसेंटेज बाय परसेंटेज 4 2 जा 8, मतलब पॉइंट्स में नहीं दिखाएगा। जो प्रीवियस का नंबर लाइन में आपका नंबर है वो आपका शो करेगा। ये ऑपरेटर इतना यूज नहीं होता। हमारे जो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो यही ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल। मोस्टली रिमाइंडर के लिए हम कभी कभी परसेंटेज एंड परसेंटेज वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। मैम ये राउंड ऑफ कर देता है पीछे वाले। हाँ जी, प्रीवियस नंबर में राउंड ऑफ करता है, नेक्स्ट नंबर पे नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। बेटा आर में ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको जरा ध्यान से सुनिए। इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैंने अभी तक जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो मैंने इक्वल टू साइन से किए थे। जैसे मैंने आपको न्यूमेरिक वेरिएबल डिक्लेयर किया, करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपका इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, सारे के सारे मैंने इक्वल टू साइन से किए थे। लेकिन मैं जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ, देयर आर अदर 4 वेज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, और वो किसके थ्रू कर सकते हैं आप? असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, एक तो मैंने सबसे पहला तरीका आपको बता चुकी हूँ कि इक्वल टू से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है कि जो भी आपका वेरिएबल का नेम होगा, अगर उसमें आप लेस देन का साइन और डैश का हैश का साइन लगा देंगे, उससे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर डबल लेस देन के साइन, लेकिन जो लेस देन का साइन होगा वो आपका वेरिएबल के साथ आना चाहिए। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। जहां पर लेस देन का साइन होगा उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम होगा। तो देखिए, देयर आर द 4 वेज टू डिक्लेयर योर वेरिएबल्स। फर्स्ट इज इक्वल टू, सबसे आसान तरीका इक्वल टू है। सेकेंड वे इज आपका लेस देन का साइन, पहले वेरिएबल का नाम आएगा, देन लेस देन का साइन, हैश का साइन और जो वैल्यू आप देना चाहते हो। तीसरा तरीका है डबल ग्रेटर देन का साइन, हैश का साइन एंड जो आप वैल्यू देना चाहते हो। देन आपकी जो वैल्यू है, हैश का साइन, ग्रेटर देन का साइन एंड जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो। तो इट मीन्स देयर आर द 4 वेज टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल। These are called the assignment operators. इसको हम करके देखते हैं। इक्वल टू मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे मैंने देखा था। अब मैं वेरिएबल ले रही हूँ x में नहीं लिया ना, मान लीजिए मैंने लिया x इक्वल टू x में ले चुकी हूँ, लेस देन का साइन, डैश 2। ये देखिए, अब मैं x की वैल्यू, x में एक वैल्यू आ गई आपकी 2। मैं इस तरीके से भी वैल्यू को डिक्लेयर कर सकती हूँ। मैं x की वैल्यू देखना चाहती हूँ कि सिर्फ x टाइप करूँ, मुझे वैल्यू शो कर दी उसने 2। अब मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ y, तो मैं वो दूसरे तरीके से करती हूँ। मैंने वैल्यू लिखी 4 डैश, ये राइट हैंड साइड ऑपरेटर है, एंड देन y। मैं y की वैल्यू देखती हूँ, देखिए 4। पहले मैंने लेफ्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया एंड देन मैंने राइट हैंड साइड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया एंड देन अब मैं आपको तीसरा बताती हूँ, लेस देन, डबल लेस देन का साइन। आपकी स्क्रीन बहुत देर से शो हो रही है। अब स्क्रीन बहुत देर से शो हो रही है ना मैम। अच्छा, मैं बोल पहले रही हूँ, आपको स्क्रीन बाद में शो हो रही है। यस मैम। ऐसे मैंने आपको पहले कहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उससे। तो नेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम है।
यस मैम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी, स्क्रीन शो रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे यूज कर रही हूँ? मैं कोई भी वेरिएबल को No, ma'am, डिक्लेयर ये वाला करने नहीं के आया। लिए मैं 4 तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकती हूँ। एक लेफ्ट हैंड ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर से, एक राइट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर से, और एक आपको डबल लेस देन के साइन से मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकती हूँ। बस मैंने आपको ये बताया। ये देखिए, अब आपको स्क्रीन शो हो रही है? तो देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। देखिए, मैंने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये लेफ्ट हैंड साइड से डिक्लेयर किया, एक्स लेस देन साइन, हैश का सिंबल एंड देन 2। मैंने x की वैल्यू देखना चाहिए तो मैंने x लिखा और उसकी वैल्यू मुझे शो हो गई। देन मैंने राइट हैंड साइड से असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया। तो इसका मतलब जहां पर भी ये लेस देन का साइन होता है ना, उसके बाद आपका वेरिएबल का नाम आता है। यहाँ पे लेस देन का साइन था तो उससे पहले आपका साइन आया आपका वेरिएबल का। ऐसे ही डबल लेस देन का साइन था तो यहाँ आपके वेरिएबल का नया साइन आया। जहां पे भी लेस देन का साइन होगा ना, उसी साइड आपका वेरिएबल का नाम होगा। उसके बाद ये 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाह सकते हैं। यही आपकी स्लाइड पे दिखाया गया है। इक्वल टू साइन आप कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, राइट हैंड से कर सकते हैं, डबल लेस देन से कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? असाइनमेंट ऑपरेटर, यस मैम। ये आर में मोस्टली आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब मैं आपको थर्ड बता रही हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स। कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं कि ये आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू देंगे। अगर आप दो वैल्यूज को कंपैरिजन करते हैं, उस कंपैरिजन करके वो आपको बताएगा कि यस इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स। तो सबसे पहले मैं लेस देन शो करूंगी, ग्रेटर देन शो करूंगी। अगर मैं डबल इक्वल टू यूज करती हूँ तो वो आपको क्या बताता है? अगर वो इक्वल है, अगर इफ इट इज, अगर बोथ आर द इक्वल देन इट विल से ट्रू, अदरवाइज इट विल से फॉल्स। तो ये देखिए, मैं तीनों ऑपरेटर आपको यूज करके दिखाती हूँ। लेस देन, ग्रेटर देन, 6 is greater than 5. Is it true or false? 6 is greater than 5. True. True. Answer is true. Okay. अब मैं दूसरा करती हूँ। 6 is equal to 5. क्या 6 इक्वल टू है 5 के? False. आंसर इज फॉल्स। ओके, अब ये देखिए, 8 इज लेस देन 2। इज इट ट्रू और फॉल्स? 8 इज लेस देन 2। False. फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। ये आपने मैम आंसर आपकी देखे? स्क्रीन शेयर नहीं अभी, स्क्रीन शो स्क्रीन नहीं हो रही? बहुत लेट हो रहा है। अच्छा लो, अब ध्यान से देख लो, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने बोला 6 is greater than 5. Was it true or false? It was true. 6 is greater than 5. Next मैंने बोला is 6 is equal to 5. उन्होंने बोला false. 6 is not equal to 5. Third is 8 is less than 2. तो yes, no, 8 is not less than 2. तो ये तीनों ऑपरेटर्स बताए मैंने आपको। तीनों ऑपरेटर्स समझ में आए आपको? Yes, These are the relational operators: less than, greater than, and equal to. Next is not equal to. Not equal to means कि आपकी ये वैल्यू उसके इक्वल है या नहीं है। ये देखिए, क्या आंसर आना चाहिए? 8 इज नॉट इक्वल टू 2। क्या आंसर आएगा इसका? ट्रू। ट्रू। ट्रू, क्योंकि इज इट ट्रू? क्योंकि आपका 8 2 के इक्वल नहीं है। These are called the relational operators. These are all the relational operators: less than, greater than, equal to, and not equal to. These are the relational operators. Next relational operator is greater than, equal to.
हम इसकी भी देख लेते हैं, n लेस देन इक्वल टू। अब देखिए टेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। n is greater than equal to 10. n is greater than equal to 8. जी, ग्रेटर देन इक्वल टू समझ में आया आपको? नेक्स्ट इज टू इज इक्वल टू लेस देन 3। 2 is equal to less than 3. Yes, 2 is less than 3. These are the relational operators. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? These are the relational operators. Okay? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? आप लोग सब ट्राई कर रहे हो साथ में? यस इज इक्वल टू लेस देन 3 फंक्शन नहीं कर रहा मेरे को। आप एक मिनट, ये देखो 2 is less than equal to 3 ऐसे लिखिए। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। ये देखो, आपको नहीं नजर आ रही? 2 लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन, देन स्पेस इक्वल टू 3। हाँ जी, आपको नजर आ गई स्क्रीन? मैम और हाँ जी, आ गई स्क्रीन नजर आपको? मैम आ रही है, मैम एरर आ रहा है, मैम देख रहा था। नहीं, आपने बेटा इसके अंदर पहले आपका लेस देन का साइन आएगा, पहले इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, पहले लेस देन का साइन आएगा, देन इक्वल टू का साइन आएगा। मैम स्पेस देना भी जरूरी है? हाँ जी, स्पेस देना भी जरूरी है। लेस देन इक्वल टू के बीच में मत दीजिए, लेकिन उससे पहले और उसके बाद स्पेस देना जरूरी है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और लोअर लेटर्स की लैंग्वेज है आपकी आर। हो गया मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा, साथ के साथ करते जा रहे हो। एक बार मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, पहले मैं अटेंडेंस ले लूँ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी बेटा, आप अपना रोल नंबर्स बोलिए। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, एक मिनट, मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, शायद एक बार ठीक से आ जाए। प्रेजेंट मैम।
मैम आयुषी प्रेजेंट। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। ओके Yes, ma'am. Voice crack हो रही है. Your voice is not clear. मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, एक्सक्यूज मी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही ढंग से। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम अब वाईफाई कनेक्ट कर लो पहले वाला। मैम मैम चैट बॉक्स में ले लीजिए अटेंडेंस। Yes, हाँ जी ma'am. अब देखिए, हाँ जी आकाश जैन, अब क्लियर आ रही है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम Yes, हाँ ma'am. जी, आकाश जैन, आर्चव जैन, प्रेजेंट मैम। आयुषी गुप्ता, प्रेजेंट मैम। अभिनय गुप्ता, आर्चव जैन, अनमोल, प्रेजेंट मैम अंश, प्रेजेंट मैम. मैम अंकुर प्रेजेंट। आपने नेम अंकुर इज प्रेजेंट। ओके, मैम यू अंश, मिस्ड आउट अनमोल। अपूर्व, Who's present, ma'am? मैम अनीशा जैन, आपने मेल कॉल की। अंश मैम हो गया। मैम ऐश्वर्या प्रेजेंट। अनीशा अनीशा जैन। ओके बेटा, अनिशा की मैम लगा। अनमोल प्रेजेंट, यू मिस्ड आउट माय नेम। आकाश, आर्जव नहीं है, अनीशा जैन है। हाँ, हम नीट कर ऐश्वर्या, सकते हैं जिनके होंगे। ऐश्वर्या भी है। मैम अनमोल बेटा ये पता ही नहीं मुझे क्या हो रहा है इसमें। हेलो मैम आकर्ष प्रेजेंट। आकाश, आकाश प्रेजेंट है, पहले तो नहीं था ये बच्चा। हाँ जी, आकाश है, आर्जव है, आयुषी, यस मैम। इसमें ना खुल नहीं रहा है, एक मिनट मैं इसी में करती हूँ। हाँ जी, आकाश है, आर्जव नहीं है, आयुषी है, अभिनय गुप्ता नहीं है, ऐश्वर्या है, अनीशा है, अंकुर यादव है, अनमोल है, अंश गुप्ता है, अंश है, अपूर्व है, अवि बंसल, यस मैम। अव्या गर्ग, प्रेजेंट मैम। आयुष शर्मा, आयुष शर्मा, चिराग अरोड़ा, भानी अग्रवाल, दीक्षिता, हर्ष कुमार, हर्षित, प्रेजेंट मैम हर्ष कुमार। हर्षित मित्तल, हर्षिता जैन, मैम हर्षिता जैन प्रेजेंट। हर्षिता सैनी, हिमांशु, हृदय मैदान, मैम हृदय प्रेजेंट। ओके, जोस, मैम जोस प्रेजेंट। कपिल, प्रेजेंट करण, मैम। करण, खुशी, प्रेजेंट मैम। खुशनीत, खुशित गर्ग, कुणाल शर्मा, मैम खुशी गर्ग प्रेजेंट। अब मेरा नेम चला गया, मैंने रीजॉइन किया खुशित था. गर्ग, मोहम्मद, यस मैम प्रेजेंट मोहम्मद फराज। मोनिका, मोनिका प्रेजेंट मैम। नव्या, प्रेजेंट मैम। निशांत, प्रेजेंट मैम। नितिन, प्रेजेंट मैम। पार्थ, पीयूष, प्रथम, प्रेम, यस मैम। रंजीता, प्रेजेंट मैम क्या नाम है? रंजीता।
रिदम, प्रेम। रोहन, मैम रितम प्रेजेंट। ओके लगा दी रोहन, सभ्या, सभ्य प्रेजेंट मैम। सीजल, ओके, सीजल बंसल, प्रेजेंट मैम। सैजल, प्रेजेंट मैम। संभव, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। कौन कौन है बेटा ये, किस किसने प्रेजेंट बोला है? संभव जैन। मैम संभव जैन लगा सजल। दी, सीजल, मैम सेजल सीजल प्रेजेंट। बंसल, हाँ जी। ओके ओके मैम बेटा, सजल सीजल ऑल्सो। प्रेजेंट। हाँ जी, मैम सजल। सजल लगा दी बेटा, सांची, प्रेजेंट मैम। संकल्प, प्रेजेंट मैम। संकेत, ओके संकेत, सिमरन गांधी, प्रेजेंट मैम। सुधांशु, एक्सक्यूज मी। मैम। सुधांशु, प्रेजेंट मैम। सुनम, प्रेजेंट मैम। सूर्यकांत, प्रेजेंट मैम। तनु, तन्वी, तन्वी प्रेजेंट मैम। तुषार, मैम यू मिस्ड उदित, शमरेंद्र कुमार। उदित, एक्सक्यूज मी मैम। उज्जवल, प्रेजेंट मैम। एक्सक्यूज मी मैम। विदित। बेटा पहले जो बोल रही हूँ ना उनकी सुन लो, बाकी जिसकी रह गई उसके बाद बोलना। उज्जवल गुप्ता, प्रेजेंट मैम। विदित, याशिका, युग, पुलकित, मैम शौर्य, यूथ प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। शौर्य, मैम यूथ खिलाड़ी। कार्तिक अग्रवाल, मैम शौर्य प्रेजेंट। शौर्य लगा दी है। अब मैम किसकी रह शौर्य गई है सराफ बोलो? प्रेजेंट। मैम चिराग अरोड़ा। लगा दी, चिराग अरोड़ा, एक मिनट, मैम हर्षित मित्तल प्रेजेंट। चिराग मैम अरोड़ा यूथ लगा दी मोंदियाती बेटा। लगा दी क्या? हर्षित मित्तल लगा दी आपकी। मैम चिराग अरोड़ा लगा दी। युग मोंगिया आपकी लगा दी है, युग आपकी लगा दी है। मैम संकल्प मिश्रा। मैम हाँ चिराग जी, अरोड़ा लगा दी। चिराग अरोड़ा लगा दी है। मैम रंजीता। रंजीता आपकी लगा दी है। थैंक यू मैम। संकल्प। मैम मोहम्मद फराज। हाँ जी, मोहम्मद आपकी भी लगा दी है। मैम अव्या। हाँ जी, मैम अव्या। अव्या। ये प्रेम चंद्रा कौन है जी? यहाँ पे नाम तो नहीं है। यस मैम। मैम शमरेंद्र कुमार। हाँ जी, हु इज प्रेम चंद्रा? बेटा प्रेम चंद्रा का नाम तो नहीं है। हेलो। वो होना चाहिए ना। हेलो। हेलो, हेलो मैम वैशाली। हेलो। हाँ जी, हाँ मैम नाम होना चाहिए मैम। प्रेम चंद्रा। यस मैम। प्रेम चंद्रा तो नाम नहीं है। हाँ है बेटा, है। कहाँ से हैं आप प्रेम चंद्रा? दिल्ली दिल्ली से मैम। अच्छा, दिल्ली कौन से इंस्टीट्यूट से? एक्चुअली प्रोफेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन से हैं। अच्छा 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 अच्छा। हाँ मैम संकल्प मिश्रा के शमरेंद्र कुमार। हाँ जी, शमरेंद्र कुमार मैम। मैम संकल्प मिश्रा के अरे लगा दिया बेटा। मैं फीडबैक लिंक भेज रही हूँ, आप वो देना। मैम कैन वी लीव द क्लास नाउ? बेटा एक मिनट, मैं फीडबैक लिंक दे रही हूँ, ओके तो इसके बाद आप जा सकते हो। एक बार मैं फीडबैक लिंक कर दूँ। और बेटा अगर आज जिसने इंस्टॉल नहीं किया है, जितना भी मैंने करवाया है, प्लीज ये प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि अब कल की क्लास में थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी तक तो मैं थोड़ा बेसिक्स करा रही थी आपको। मैम पीडीएफ सेंड कर देना। पीडीएफ एक बार होने दो, फिर मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब भेज देती हूँ।
हाँ जी, 1 मिनट मैं आपको भेज रही हूँ। फीडबैक लिंक भेज रही हूँ 1 मिनट में आपको। हाँ जी, ये फीडबैक फॉर्म प्लीज आप फिल कर दीजिए एंड देन यू कैन लीव। मैम हैव यू प्रेजेंट मार्क द प्रेजेंट समरीन कुमार? यस यस जी, हाँ जी, कर दिया आपकी। मैम ये आर स्टूडियोज और आर कंसोल में डिफरेंस क्या है? मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा। लिंक नहीं ओपन हो रहा? मैम इनवैलिड शो कर रहा है। एक मिनट मैं दोबारा भेज देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, आपके ग्रुप पे भेज देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ। यस मैम। नेट नहीं काम कर रहा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ, आप प्लीज फिल कर दीजिएगा।